So hello all, I welcome you all in our next video of periodic test 1 English language lesson 1 sentences and phrases. This video is based on revision for class 8 where we are going to revise sentences and phrases lesson 1. So let's proceed class. Sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense by itself. So sentences क्या होते हैं? Sentences जो होते हैं group of words होते हैं जो कि complete sense हमें बताते हैं, right? Examples: John works hard. B1, I like to read books, right? So let's see the features. A sentence is a group of words that makes complete sense. Very correct. It begins with a capital letter. This is also correct because every sentence in no matter in what subject, we have to begin with the capital letter. It ends with a full stop. Yes, we have to put a full stop at the end of every sentences. An exclamation mark, maybe there can be an exclamation mark as well, or a question mark, right? So let's proceed further class. Parts of sentences. Now let's see how many parts are there in a sentence. Every sentence has two parts, namely a subject and a predicate. हर sentence के दो parts होते हैं, एक subject होता है और एक predicate. Let's see what are they. Subject and predicate. The subject is the first part of a sentence that tells what a sentence is about. Subject जो होता है first part होता है sentence का और वो हमें ये बताता है कि sentence में किसके बारे में बात हो रही है, right? B1, the predicate is the second part of a sentence. Predicate जो होता है second part होता है sentence का, that says something about the subject, और जो कि subject क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है. तो subject कौन है ये subject part बताता है sentence का, और subject क्या कर रहा है ये predicate part बताता है sentence का, right? Example: Roma reads a book. So Roma is a subject, and what she is doing, she is reading a book. That means it is a predicate. Now predicate involves main verb or action verb with the with object, or there can be helping verb or auxiliary verb as well with a object, right? So let's proceed further class. Now let us understand what is object. When the verb in the predicate is a transitive verb, it requires an object to complete its sense, right? So जब कभी भी हम sentence लिखते हैं और अगर वो sentence बिना ऑब्जेक्ट के है तो वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट? सो जैसे ही उस इंट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या जोड़ देते हैं? एक ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, वो तुरंत हो जाता है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाने लगता है. सो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स विद ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट, राइट? सो दैट जब हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो वो हमें कंप्लीट सेंस बताता है. लेट अंडरस्टैंड बाय रीडिंग फर्दर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से आई थ्रो, अब मैंने बोला आई थ्रो मतलब मैंने फेंका. अब मैंने फेंका तो ये क्या फेंका, कैसे फेंका, किसके साथ फेंका या किसके टूवर्ड्स फेंका, ये हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है. तो ओवर हियर आई थ्रो इज, so it is not making a complete sense. The verb throw requires an object. अब जो throw verb है तो वो रिक्वायर क्या क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट की. और जैसे हम ऑब्जेक्ट क्या है? अ बॉल. ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉल टू मेक कंप्लीट सेंस. और जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया अ बॉल इस इंट्रांजिटिव वर्ब में, तो ये क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब. दैट मीन्स इट इज़ नाउ गिविंग अ कंप्लीट सेंस. सो एग्जाम्पल्स: आई थ्रो अ बॉल विच इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. अगर सिर्फ ये आई थ्रो होता तो इट वुडेंट हैव made a complete sense, but now just because we have added a ball as an object, so now the complete group of word is making a complete sense, right? B1, I sing a song, right? So I sing is giving a half sense when and as soon as on adding a song which is playing the role of an object, now it is giving a complete sense. You should learn swimming. So you should learn अगर होता तो we it wouldn't have given or giving a complete meaning, right? So on adding swimming, now it is giving a complete sense, that is you should learn swimming. So
Now let's proceed further. Direct and indirect object. Now let us see, आगे चल के ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है टू पार्ट में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन. गेव क्या है? वर्ब है, दैट इज मेन वर्ब. स्वीट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड टू द चिल्ड्रन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट. सो now the question arises, how will we understand what is direct and indirect object in a sentence, right? So here the verb gave takes two object. Gave क्या कर रहा है? दो ऑब्जेक्ट से बन रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब. कैसे? एक स्वीट से और फिर दूसरा द चिल्ड्रन से. सो लेट्स सी. द नाउन आंसरिंग व्हाट आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जब कभी भी इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट दिए हों और कभी भी आपको जानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हमें पता चलेगा, तो हमेशा वर्ब के बाद कौन सा क्वेश्चन लगा के पूछो या पूछना चाहिए व्हाट. अगर वर्ब के बाद हम व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर हमें कोई नाउन मिल रहा है, तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. नाउन या ऑब्जेक्ट आर सेम. सो ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नाउन मिल रहा है, तो व्हाट लगाने से अगर हमें आंसर मिल रहा है किसी नाउन या ऑब्जेक्ट का नाम, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा. कैसे? देखते हैं. अगर मैं बोलूँ द टीचर गेव स्वीट्स, सो वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे? गेव है. और गेव के बाद हमें क्या लगाना है? व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछना है. सो अगर मैं पूछूँ गिवन व्हाट, राइट, गिवन व्हाट, तो क्या दिया गया? स्वीट्स दिया गया. तो आया ना गिवन व्हाट. अब क्या दिया गया? आंसर क्या आएगा इसका? स्वीट. सो स्वीट is a direct object, right? Let's see the second one. The noun naming the person for whom something is done is the indirect object of the verb, that is the children. और जब हम whom लगा के पूछेंगे कि किसके लिए वो किया गया है या किसके लिए किया जा रहा है, तब जो हमें ऑब्जेक्ट या नाउन मिलेगा वो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उस नाउन को या उस ऑब्जेक्ट को? इनडायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल whom लगा के देखते हैं. टू whom the sweets were given. टू whom the sweets were given. तो टू whom मतलब किसको दिया गया? द चिल्ड्रन. तो द चिल्ड्रन यहाँ हमारा आंसर है, तो इसलिए द चिल्ड्रन. whom लगा के हमने द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट मिला, इसलिए वो इनडायरेक्ट है. वॉट लगा के हमने जब क्वेश्चन किया तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, वो क्या था? स्वीट्स, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. Sentences can be divided into different types on the basis of their meanings, right? First is declarative. Declarative sentence makes statement or some kind of observation, right? So declarative sentences simply क्या करते हैं? Declare करते हैं. They declare something while speaking a sentence. Declarative sentences are also known as assertive. Why? Because they assert. Assert means मतलब स्थापित करना या किसी चीज़ को बताना, स्टेट करना. So declarative or assertive sentences are the statements that uh, that uh, that declares or state something, right? So this declarative is further divided into two main parts, that is affirmative and negative. अब affirmative sentences क्या होते हैं? Affirmative sentences are those sentences which are written without using the word no or not or never. ठीक है. सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नो, नॉट या नेवर जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, और इनको हम दूसरे शब्द में पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट मैंगोज, राइट. सो यू कैन सी इन दिस सेंटेंस there is no word like no, not or never has been used, right? Negative sentences on the other hand are the sentences in which we use no, not and never words, right? So negative sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम no, never या not जैसे word का use करते हैं. These sentences express a negative meaning. Example, I do not go to school, right? So do के बाद देखो अब क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है, तो नॉट लग गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस है, राइट. और जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वो अफर्मेटिव है, और नेगेटिव रहेगा तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस है. लेट अस सी द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन सेंटेंसेस.
An interrogative sentence asks a question and is formed by putting the auxiliary verb before the noun or by beginning the sentence with a WH word and ending it with a question mark, right? So interrogative sentences वो sentences होते हैं जिसमें या तो हम auxiliary वर्ड्स लगा करके नाउन से पहले क्वेश्चन पूछते हैं और या तो सीधे WH वर्ड होता है, WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि WH वर्ड जो भी होते हैं वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब कौन से वर्ड होते हैं? ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं। और इनके एंड में हम क्या पुट अप करते हैं? एक क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ऑक्सिलरी नाउन से पहले कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आर यू कमिंग, सो आर यू कमिंग ये क्या हो गया? क्वेश्चन सेंटेंस है। आर क्या है? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, और आर के बाद क्या लग रहा है? यू, और जो कि क्या है? नाउन या प्रोनाउन, राइट। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, डोंट यू लाइक रीडिंग, सो डोंट क्या है? इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद यू क्या है? इट्स अ प्रोनाउन। लाइक रीडिंग, so it's a question sentence, and at the end of the this example you can see there is a question mark has been inserted. Let's proceed further, class. Imperative sentences express request, commands, advice और suggestion. अब imperative sentences वो sentences होते हैं जो कि क्या express करते हैं? request, command, advice या suggestion, right? In such sentences the subject is invariably the second person pronoun you, which is generally implied. और इसमें जब हम बोलते हैं किसी सेंटेंसेस को या सेंटेंस को, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एग्जांपल दिया है गो टू योर रूम, ये क्या है? कमांड है। अब अगर गो से पहले हमने कोई किसी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है या नाउन या प्रोनाउन का, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा? यू, ये अंडरस्टूड है, राइट। जैसे मैथ्स में आपके होता है ना कि एक्स अगर हम लिखते हैं तो जो वो 1x होता है, तो हम कभी भी 1x नहीं लिखते, x मीन्स 1x, वो अंडरस्टूड है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम गो से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं और नॉर्मल अगर एक सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन का जिक्र हो रहा है, राइट। सो इसको यू लगा के कैसे बोल सकते हैं? यू गो टू योर रूम, विच इज़ अ कमांड। सो दिस इज़ अ कमांड एंड दिस इज़ अ इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ डू नॉट कॉल मी, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज़ वर्ड लगा हुआ है, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो go to your room, so that means it is understood that it is saying you go to your room, it's a command. Please don't call me, it's a request. So this group of words which is expressing a request is an imperative sentence. Now exclamatory sentence. Such sentences express sudden strong feelings like surprise, delight, disgust and grief. Disgust means bad, राइट। सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, किसकी? सरप्राइज की, डिलाइट की, हैप्पीनेस की, ग्रीफ की, सैडनेस की, डिस्गस्ट की, एक्सपेक्ट्रा। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे कौन सा मार्क होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। या कौन सा पंचुएशन होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, so it is an exclamatory sentence because it is expressing a sudden feeling, and at the end of the sentence you can see there is a mark which is an exclamation mark. So let's proceed further, class. Phrase. A phrase is made up of a group of words that make sense but not complete sense. अब फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर ही आते हैं, बट ये कभी भी एक कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं बताते हैं या नहीं दिखाते हैं या नहीं देते हैं, राइट। इट डज़ नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इनके ना सब्जेक्ट होते हैं और ना प्रेडिकेट होते हैं। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर। इन द गिवन एग्जाम्पल द टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स माई फ्रेंड एंड अ गुड फुटबॉल प्लेयर आर फ्रेजेस, राइट। अब माई फ्रेंड ये भी फ्रेज है, अ गुड फुटबॉल प्लेयर ये भी फ्रेज है, राइट। अगर अलग अलग देखें तो दो दे कन्वे सम मीनिंग, दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ। हाँ, वो थोड़ा बहुत, ये दोनों सेंटेंस भले ही अगर माई फ्रेंड देखें या अ गुड फुटबॉल प्लेयर, ये दोनों फ्रेजेस हैं और प्लस थोड़ा बहुत मीनिंग बता रहे हैं,
पर पूरी तरीके से नहीं। अगर इनको अलग अलग खुद में अकेले स्टैंड किया जाए या अकेले अकेले अलग अलग करके लिखा जाए तो दे विल नॉट बी एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस, राइट। हियर आर एग्जाम्पल, but they do not make complete sense by themselves. Here are some more examples of phrases. In spite of, in a corner, pink in color, at the shop. Now these group of words are phrase because they cannot stand alone to give a complete sense or meaning. Features: phrase do not have a subject or a predicate. Very right. They cannot stand by themselves. That means they cannot give the full meaning or sense completely. Phrase do not make complete sense. That's absolutely correct, right? So these are the three features that we have read just now. Let's proceed. So types of phrases. Noun phrase. A phrase that acts like a noun is called a noun phrase. सेंटेंस में वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि नाउन फ्रेज की तरह काम करते हैं या वो फ्रेज जो नाउन की तरह काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। इट कंटेन्स अ नाउन, इसमें नाउन होता है। दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई क्या करते हैं? नाउन को। सो नाउन फ्रेज इज इक्वल टू नाउन प्लस मॉडिफायर। एग्जाम्पल: दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। सो अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? जो कि है फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज कैसे बन रहा है? क्योंकि लास्ट में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? होम। तो होम क्या होता है? नाउन है। और ये नाउन और ये फ्रेज़ क्यों बन रहा है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो मीनिंगफुल नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे हैं। और होम जो है इसमें नाउन है और इसमें मॉडिफायर क्या है? मीन्स नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ह्यूज ब्यूटीफुल जो वर्ड लिखा हुआ है, अ ह्यूज ब्यूटीफुल, वो मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है? होम को। और वो क्या है? नाउन। सो ये पूरा नाउन प्लस मॉडिफायर, अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम जो कि नाउन प्लस मॉडिफायर का काम कर रहा है, ये क्या हो चुका है? ये क्या हो गया है? नाउन फ्रेज, राइट। तो ये कहाँ पे काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है, राइट। अ वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। सो अ वुमेन इन द विंडो, अ वुमेन क्या है? ये है आपका नाउन। इन द विंडो क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच इज़ नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस, दैट मीन्स फ्रेज। सो ये फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है? इन द विंडो किसको मॉडिफाई कर रहा है? अब वुमेन को, ठीक है, कि वो औरत जो कि विंडो के अंदर खड़ी है, वो शाउटेड फॉर हेल्प। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ नाउन फ्रेज। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अब वुमेन इन द विंडो, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है इन अ सेंटेंस। सो दैट इज वाई अ वुमेन इन द विंडो इज अ सब नाउन फ्रेज। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Adjective phrase. A phrase that acts like an adjective in a sentence is called adjective phrase. Like an adjective, it modifies a noun or a pronoun. ठीक है। सो वो फ्रेज जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव की तरह जैसे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, वैसे ही यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखा जाता है सेंटेंस में, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, वो किसको मॉडिफाई करता है? उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को। एग्जाम्पल: अ किड ऑन द रूफ इज़ लुकिंग एट द स्काई। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, अ किड इज़ लुकिंग एट द स्काई, तो गलत नहीं होता, एकदम सही था। बट ऑन द रूफ जब हमने लिख लिया तो ऑन द रूफ क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इससे कुछ हमें सेंस मिल नहीं रहा है। बट ये ऑन द रूफ जो कि फ्रेज है, वो किसके बारे में बता रहा है? किड के बारे में, कि लड़का तो है पर कहाँ खड़ा है? ऑन द रूफ में। सो ऑन द रूफ जो कि फ्रेज है, और क्योंकि एडजेक्टिव का काम किस तरीके से कर रहा है? क्योंकि वो किड मतलब जो बच्चा है उसके बारे में बता रहा है। सो दैट इज़ वाई एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। सेकेंड, अ बॉय इन द शॉप इज़ माई फ्रेंड, राइट। सो अगर हम देखते हैं कि अ बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये बिल्कुल सही था। पर इन द शॉप जब हमने लगा लिया तो इन द शॉप क्या है? फ्रेज है। और क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? उस लड़के के बारे में, कि वो लड़का जो शॉप में है। तो क्योंकि इन द शॉप जो है वो है फ्रेज, और वो एडजेक्टिव की तरह भी कैसे कम कर रहा है? क्योंकि वो लड़के के बारे में बता रहा है, इसलिए इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। एडवर्ब फ्रेज। अ फ्रेज विच एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। वो फ्रेज सेंटेंस में जो एडवर्ब की तरह काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज। इट मॉडिफाइज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, और ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्योंकि एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अदर
एडवर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले को के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सो इसी तरह एडवर्ब क्या करता है यहाँ पे, अगर सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज हमेशा किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, राइट। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल, द किड सैट बिसाइड हर मदर। अब सैट क्या है, वर्ब है, और बिसाइड हर मदर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ फ्रेज। सो ये रोल जो है, मतलब ये फ्रेज क्या कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, सैट को, और सैट क्या है, वर्ब। सो दैट इज़ वाई बिसाइड हर मदर इज एन एडवर्बियल और एडवर्ब फ्रेज, राइट। ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड। अब इन अ हाई स्पीड क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ फ्रेज, और ड्राइव्स और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो इन अ हाई स्पीड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है फ्रेज हैं, और ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ड्राइव्स को, और ड्राइव्स क्या है, वर्ब। सो दैट इज़ वाई in a high speed is a group of word that is playing the role of an uh, adverb phrase. Let's proceed further, class. So homework, students, you all have to learn all the definitions and complete each and every exercises of lesson 1 in your book. And if you encounter or face any problem, then you can text me or call me personally, right? Let's proceed further. So students, today we have completed the revision of lesson 1, and in our next class we will continue with the revision of lesson 2, that is noun and phrase. Sorry, noun and pronoun. So till then, stay safe and take care. Thank you.